Very good morning, students. Welcome to our class of mathematics. Today we will discuss the mathematics of class 10, and in the part 3 we have discussed about some example. We have done the portion of the chapter number 13, surface area and volume, right? And we have seen the 7 examples, and on the basis of that examples you have done the exercise 13.1 and 13.2, right? And today we will see the example number 8, and after doing this part of the mathematics you will able to solve the exercise 13.3, right? So in this section, or this is the part 4 of the surface area volume, right? In this section we will see the questions of the volume एंड द रिकास्टिंग। रिकास्टिंग का मतलब यह होता है कि हमारे पास कोई एक सॉलिड दिया हुआ है और उस सॉलिड का जो शेप है, सपोज दैट इज द कोनिकल सॉलिड, right, or the spherical solid, and we convert that solid into the another type of the shape of the solid, right? And we will compare their volume, or we will find the radius and the heights, right? This type of the parameters we find in this type of questions. So let us see the example number 8, what it says that. So here you can see the diagram, right? Here is a cone, right? That is the conical shaped solid I have, and the height of the cone is given, that is 24 centimeter, and the radius of the cone, that is 6 centimeter, right? And this cone, after melting, reshaped, or we can call it as the recasted into the spherical ball, right? And in this question we have to find the radius of this spherical ball. So you can see that I have taken the small r, that is the radius of the cone, and I have taken the capital R, that is the radius of the sphere. So ultimately we have to find the volume of these two spheres and compare them, right? So whatever the data in the question is given, that is the height of the cone 24 centimeter and radius of the cone, that is 6 centimeter, and we have considered the capital R as the radius of the sphere, right? Now we know that whatever the volume of the cone, that would be equal to the volume of the sphere. So this is the reason I have made the general formula, that is the volume of cone, that is equal to volume of sphere. And we know that what is the volume of the cone, that is 1 upon 3 pi r square h, and the volume of the sphere, that is 4 upon 3 pi r cube, right? तो यहाँ पर कैपिटल R जो है, that is the radius of sphere, and small r जो है, that is the radius of the cone. So how to solve this question, right? If you see that left hand side and right hand side, both the value of the pi, it can be cancelled out, right? यहाँ पर ये दोनों पाई की वैल्यू जो है ये कैंसिल हो जाएगी, and you can see 1 upon 3 and 4 upon 3, so 3 is common here, so it can be also cancelled out, right? तो हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग क्या बच जाएगा, r square h, right? और यहाँ पर हमारे पास 4r cube यहाँ पर रिमेनिंग रह जाता है, and ultimately we have to find the r cube. So this 4 will come to the denominator of this r square h. यहाँ पर हमने रेडियस की वैल्यू जो 6 सेंटीमीटर दिया है वो हमने यहाँ पर पुट किया, तो 6 square, that is equal to 36, and it must be multiplied with the 24, right? If we cancel 36 and 4, right, so we will get 9, and 9 is multiplied with the remaining 24, and I will get 216. और यहां से आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहां पर r क्यूब है, द पावर ऑफ r इज 3, और अगर यहां से मैं क्यूब हटा दूंगा, सो वी कैन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द 216, एंड वी नो दैट 216 इज द परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ 6, राइट? 216 का अगर हम क्यूब रूट निकाले तो वो 6 के बराबर होता है, and this is the reason we can say that the radius of the sphere that has been reshaped, right, by the cone, right, the radius of the sphere would be 6 centimeter. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर radius of cone and the radius of sphere दोनों ही 6 centimeter है, right? So I hope कि ये example आपको बहुत ही clear हो गया होगा, सारी चीजें मैंने बहुत ही आसानी से आपके सामने यहाँ पर रखी है, right? इस example को करने के बाद we will see the example number 9. Now friends, we will do the example number 9 of your textbook, in which what is the condition is given. Suppose this is the diagram I have drawn for you. This is the cuboidal tank in the ground, right? ये नीचे की तरफ है, and this is the cylindrical tank on the roof. So you know that whatever the water we transport into the upper tank of our house, that is filled by this sump. This is the sump. ये sump जो है ये एक ऐसा water tank है जो कि underground है, right? लेकिन इसका जो shape है, that is the cuboidal, right? So the length of the cuboidal sump, that is 1.57 centimeter, and the breadth is 1.44 meter is given, and the height, that is 95 centimeter, right?
ये हमको क्यूबॉइडल टैंक का डायमेंशन दिया हुआ है, और इस क्यूबॉइडल टैंक, ये शुरू में क्यूबॉइडल टैंक जो था पूरा बना हुआ था, एंड जब हमने यहां से वाटर ट्रांसपोर्ट किया सिलेंडर में, तो ये सिलेंडर अब पूरा भर चुका है, एंड सम स्पेस इज empty into this water and some left water is remaining in this sump, right? And this is the cylindrical tank whose height is 95 centimeter and the radius is 60 centimeter is given, right? And by this cuboidal tank the water is transported into that, and now this is the tank which is completely filled, right? ये जो tank है it is completely filled, right? तो हमको यहाँ पर निकालना क्या है? We have to calculate the height. यहाँ पर ये जो height है, यानी कि इस सिलिंड्रिकल टैंक में, सम्प में, जिसको यहाँ पर क्वेश्चन में सम्प कहा गया है, इस सिलिंड्रिकल क्यूबॉइडल टैंक के अंदर जो पानी बचा है उसकी हमको हाइट निकालनी है, राइट? सो फॉर दैट all the data which is given in the question we have written over here. Radius of the cylindrical tank that is 60 centimeter, and centimeter को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, so it would be equal to 0.6 meter. And the height of the cylindrical tank, right? We are talking about cylindrical tank, so height is 95 centimeter and it is converted into meter, that is 0.95 meter, right? सेंटीमीटर को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें, so it can convert into meter. तो ये दो चीज हमने कन्वर्जन कर लिया. And the length, breadth and height which is shown here, यहाँ पर आपको दिखाया लेंथ that is 1.57 meter and 1.44 meter, that is the breadth, and the height is given into the centimeter. So be careful, right? यहाँ पर height आपको सेंटीमीटर में दिया है and you have to convert into the meter, that is equal to 0.95 meter. Now what is the concept here? यानी कि इस सबसे पहले हमको यहाँ पर ये निकालना होगा कि इस क्यूबॉइडल टैंक में कितना पानी बचा है. इस सिलिंड्रिकल टैंक को भरने के लिए जितना पानी लगा था वो जा चुका है, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज लेफ्ट इनटू द सम्प, राइट? तो सबसे पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं. सो व्हाट इज द इक्वेशन वी कैन मेड? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सम्प, यानी कि वॉल्यूम का सम्प का, यानी कि क्यूबॉइडल टैंक का हम पूरा टोटल वॉल्यूम निकाल लें, और उसमें से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि यहां पर जितनी स्पेस, जितना वॉल्यूम इस टैंक में खाली है वो सिलेंडर टैंक के बराबर है, राइट? इसीलिए हम यहां पर ये कर रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सम माइनस वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक, ये कर सकते हैं. सो वी कैन पुट द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सम दैट इज L into B into H, and the volume of the cylindrical tank that is pi r square H, and the value of the pi which is mentioned over here that is the 3.14. तो हमको 3.14 रखना होगा. So just see carefully, यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स दिख रहे होंगे आपको, बट मैं आपको यहाँ पर इसका एक ओवरलुक देता हूँ. यहाँ पर लेंथ हमको दिया था 1.57 मीटर, तो मैंने इसको यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में 157/100 लिख लिया, बिकॉज यहाँ पर डेसिमल के बाद यू कैन सी हियर इज द डेसिमल एंड आफ्टर द डेसिमल देयर इज द टू प्लेसेस, राइट? तो मैं यहाँ पर 100 कर सकता हूँ. सिमिलरली 1.44 को मैं 144/100 लिख सकता हूँ, एंड 0.95 मीटर को मैं 95/100 मीटर लिख सकता हूँ. तो इस तरीके से फ्रैक्शन में करने से ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है, बिकॉज डेसिमल वैल्यूज आर वेरी डिफिकल्ट टू मल्टीप्लाई इन ऑल दिस, राइट? फिर पाई की जो वैल्यू है वो है 3.14, तो यहां से डेसिमल रिमूव करने के बाद नीचे में 100 लगा सकता हूं. एंड द रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक दैट इज द 0.6 मीटर, सो आई कैन राइट 6/10, एंड अगेन दैट इज द स्क्वायर, सो वी कैन अगेन राइट 6/10, सो दैट इज द रिपीटिंग वैल्यू, एंड 95/100 दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आई हैव रोट द वैल्यू, राइट? यहां पर सारी वैल्यू मैंने लिख दी. अब नाउ you can see that 95/100 and 95/100 here, so it is the common value, right? So we can make it out of the bracket, यानी कि हम इसको ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर ले लेंगे, and the remaining value we can put here over here. तो ये जो दोनों वैल्यू है मैंने यहाँ पर अंदर रख दी, and the sign of the subtraction, और यहाँ से ये जो रिमेनिंग जो वैल्यू है 6 6 36 कैलकुलेट करके यहाँ रखा है, और 10 10 100 ये भी मैंने यहाँ पर रख दिया, एंड ये जो वैल्यू है 3.14 और 100 इसको मैंने कैंसिल कर दिया. इट इज डिवाइडेड बाय 2, right? So we can get 157/50. Now this is the bracket. Now we have to solve the bracket first. तो यहाँ पर 95/100 को भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 से, so we will get ultimately 19/20, right? And 157/100 and 36/25, इसका अगर हम रिडक्शन करेंगे, इसको हम वैल्यू को रिड्यूस करेंगे तो हमको ये मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर 157 तो वैसा ही है, 100 and 36 को हमने यहाँ पर कैंसिल आउट किया है, so it can be cancel out with 4 9s are 36, so this is the reason 9 is coming here, and 100 का फोर्थ पार्ट होता है 25, तो ये कर दिया हमने यहाँ पर, थोड़ा रिड्यूस कर दिया, वैल्यू छोटी हो जाती है, कैलकुलेशन करने में आसान होता है. एंड 157/50, एंड यहाँ पर भी हमने इसको रिड्यूस किया है, 36 और 100 को 4 से डिवाइड करके 9/25 ले लिया. नाउ आफ्टर दिस
19/20 को हमने मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया, so we will get the 0.95, right? And here the multiplication of both these fractions, right? So that is 6.28, right? And sorry, 157.25, that is 6.28, and 9/25, that is 0.36. And again the sign of subtraction, and the division of this 157/50, that is 3.14, and 9/25 again the same like 0.36 यहाँ पर हमने. So this is the volume of the water which is left in the sump. तो यहाँ पर हमने इसको वैल्यू को पूरा सॉल्व नहीं किया, इसको मीटर क्यूब में लगा, क्योंकि अभी इसका और आगे का प्रोसेस बाकी है. तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया. इसके बाद का हम अभी पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, राइट. नाउ फ्रेंड्स, ये हमने जो यहाँ पर वॉल्यूम निकाला है, दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इनटू द सिलिंड्रिकल टैंक और द सम्प. अब हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प, राइट. यहाँ पर जो हाइट जो बची है उसको हम निकालना है. तो यहाँ पर हम फॉर्मूला बनाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प डिवाइडेड बाय द लेंथ इनटू ब्रेड्थ ऑफ द सम्प. यानी कि यहाँ पर क्यूबिकल टैंक की जो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगी उसको हम यहाँ से उसको निकाल के यहाँ से हम वॉल्यूम का जो वाटर है, जो कि यहाँ पर जो हमको वॉल्यूम मिला है, इसको डिवाइड कर देंगे. तो देखिए यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को बिना कैलकुलेट किए मैंने यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में जैसा नीचे दिया था उसी को लिखा है. तो यहाँ पर 0.95 मल्टीप्लाई विथ 6.28 इंटू 0.36 माइनस 3.14 इंटू 0.36, एंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 6.28 इंटू 0.36. तो यहाँ पर हम इनका जब कैलकुलेशन करेंगे दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो वी विल गेट 2.26, राइट. यहाँ पर डेसिमल है तो 2.26 मिल जाएगा. इनका जो मल्टीप्लीकेशन है 1.13 मिलेगा. आप इसको कर सकते हैं, राइट. सो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज 2.26, एंड आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन, राइट, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो वी विल गेट 1.13, एंड इट इज मल्टीप्लाई विथ 0.95, एंड दिस टोटल वैल्यू is divided by 2.26, so it will give us 0.475 meter. That is the height of the water which is left into the sump, or we can convert into the centimeter, which is equal to 47.5 centimeter. That is our answer, right. तो इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल आराम से इसको लिख सकते हैं. पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, and you have to practice this because this type of question is somehow difficult, right. So we need practice because the dimensions are given into the decimal, so it will take also a lot of time. So if we practice it, so we can save our time, right. So after completion this question, we will see the next example. Now friends, we will see example number 10. What is the example number 10? There is a rod of the metal is given, and the length of the rod is 8 centimeter, and the diameter of the rod that is 1 centimeter, right. तो इस रॉड को हमने मेल्ट किया है और इसको वापस से रीड्रॉन इनटू द वायर, राइट. इस रॉड का हमने यहाँ पर एक वायर ड्रॉ कर लिया है, और इस वायर की जो लेंथ है दैट इज 18 मीटर है. सो वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ दिस वायर. हमको इस डायमीटर का, इस वायर का डायमीटर फाइंड करना है. ये वायर है और एक ये रॉड है, so both are different. So what we can see that the volume of the rod that is equal to the volume of wire. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रॉड पहले फाइंड कर लेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ रॉड यू कैन सी दैट इज इनटू द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h, राइट. एंड यहाँ पर जो रेडियस होगी दैट इज हाफ ऑफ द डायमीटर, दैट इज 1/2. तो 1/2 हमने यहाँ पर रख दिया, पाई वैसा ही रखा हुआ है, और यहाँ पर हाइट जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द रॉड, दैट इज 8 सेंटीमीटर, right. So after the calculation we will get 2 pi centimeter cube, that is the volume of the rod. यहाँ पर हमने अभी पाई की वैल्यू फाइंड नहीं की है, इसको एज इट इज रखा हुआ है. अब हम क्या करेंगे, we can find the volume of the wire. तो वॉल्यूम ऑफ वायर होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H, राइट. यहाँ पर कैपिटल R that is the radius of the wire, and the capital H that is the height or the length of the wire, right. तो यहाँ पर स्मॉल r और स्मॉल h हम ले चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल ले रहे हैं दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए. तो पाई की वैल्यू हमने रखी है, और r स्क्वायर हमको निकालना है. रेडियस हम फाइंड करेंगे तभी हमको डायमीटर मिलेगा, तो हम यहाँ से रेडियस फाइंड करेंगे. एंड द हाइट और द लेंथ ऑफ द वायर इज गिवन 1800 सेंटीमीटर, राइट. तो 1800 सेंटीमीटर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 18 मीटर को हमने 1800 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, right, because all the dimension is given in the centimeter, so we have to convert the 18 meter into 1800 centimeter. तो ये हमारा जो वॉल्यूम है that is equal to the volume of wire. So this 2 pi that is the volume of rod, and this is the volume of wire, and we have seen that both the volumes are equal, right. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे. 2 pi
एज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू 1800, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया है, राइट। नाउ वी कैन सी दैट पाई एंड पाई, राइट, ये पाई जो होगा और इस पाई को कैंसिल आउट हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आर स्क्वायर अपनी जगह पे है, 1800 जो होगा वो 2 के नीचे चला जाएगा, राइट, डिनोमिनेटर में, सो 2 अपॉन 1800, एंड इफ वी रिमूव दिस स्क्वायर, यहां से अगर हम इस स्क्वायर को रिमूव कर देंगे, सो वी विल गेट रूट अंडर रूट 1 अपॉन 900, क्योंकि अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो 1 अपॉन 900 आ जाता है, और वी नो दैट 1 and 900 both are the perfect square number, so 900 is the perfect square of 30, so 1 is the perfect square of 1, so 1 upon 30 centimeter, that is the radius of the wire, और इस रेडियस को अगर हम डबल कर दें तो वो किसके बराबर होता है, डायमीटर के बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है डायमीटर ऑफ द वायर दैट इज इक्वल टू 2 into r, right, so 2 into 1 upon 13 that is equal to 1 upon 15 centimeter, right, so this is the diameter, and if we convert it this value into the decimal millimeter तो ये मिलेगा हमको 0.67, राइट, तो 0.67 या फिर 1 upon 15 सेंटीमीटर, दोनों ही इसके जो होंगे राइट आंसर होंगे। सो यू कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड बाय द डायग्राम आई ट्राइड दैट कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाए, राइट। सो एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और 10 को करने के बाद you will be able to solve the exercise number 13.3, and if you have any query or the problem you can ask me into the doubt session, right। अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 5 में I will try that कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपके एक्सरसाइज में जो आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, तो उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूं, तो नेक्स्ट पार्ट 5 में हम उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। सो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।